Hello friends, how are you all? My name is Muktadhi and in today's video lecture, we are going to cover a topic, factors affecting distribution of insolation. This is the topic of climatology and it is very important topic for NET JRF aspirants. So let's start. Before that, this is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. So let's start with our today's topic. Just a second. Yes. Factors affecting distribution of insolation. Insolation is the incoming solar radiation. As we all know that the incoming solar radiation is not distributed equally on the Earth's surface. Why? Because there are certain factors which affect its distribution. Right? These factors are angle of sun's rays, length of the day, distance between sun and earth, sunspot, and effect of atmosphere. So let's cover these factors one by one. सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंगल ऑफ सन्स रेज. अब सन की रेज का जो एंगल है ग्राउंड सरफेस से जो बनता है, जो अर्थ सरफेस से बनता है, वो लार्जली डिटरमाइन करता है कि कितनी इंसोलेशन, कितना अमाउंट ऑफ इंसोलेशन किसी जगह पे रिसीव होगा. जैसे कि दी सन रेज आर फॉलिंग अपॉन इक्वेटर. जैसा कि हम देख रहे हैं इक्वेटर पे जो सन रेज है दे आर वर्टिकल, राइट, मोर और लेस वर्टिकल एट इक्वेटर. तो इक्वेटर पे मैक्सिमम एंगल बनता है कितना, 90 डिग्री के करीब. इक्वेटर पे मैक्सिमम एंगल होता है विच मीन्स दिस एरिया रिसीव्स minimum this area receives maximum insolation and the minimum possible area covers maximum amount of energy, right? Whereas the north pole, this is the north pole and south pole depicted in the diagram. The north pole, here the sun rays are slanting. As we can see here, sun rays kya hai, slant ho rahi hai, so they are covering a bigger area. ये oblique पड़ रही है ना. तो ऑब्लिक है, तो ये जैसे जैसे मतलब जो सन रेज है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं तो ये ऑब्लिक होती जाती हैं. सो द एंगल ऑफ द सन रेज स्टार्टेड डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोलवर्ड्स. अब ये डिक्रीज होता है तो विच मीन्स द एनर्जी रिसीव पर यूनिट एरिया दैट ऑल्सो डिक्रीजेस. जैसे कि हम इस डायग्राम में देखते हैं, एज यू कैन सी हियर एट द इक्वेटर the sun's rays spread over a narrow zone. अब sun ray इतनी narrow zone में minimum area के अंदर अगर spread होंगी, so which gives so which means that per unit area receives maximum energy, whereas the sun's rays spread over a wide area in the polar region, so which means the per unit area the energy receives is minimum at polar areas, right? तो पोल्स पे एनर्जी जो है वो पर यूनिट एरिया कम रिसीव होती है, जबकि स्प्रेड ज्यादा एरिया में होगी. और इक्वेटर पे जो सन रेज है वो स्प्रेड कम एरिया पे होती है बट एनर्जी ज्यादा रिसीव होती है, इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होती है, राइट. उसके अलावा जो सन रेज है अगर हम पोलवर्ड्स देखें, सो इट हैज टू पास अ थिकर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. इस वजह से अब क्योंकि सन रेज को जो एटमॉस्फेयर की थिकर पोर्शन से पास होना पड़ रहा है तो काफी सारी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन के अंदर लॉस्ट हो जाती है. अब ये टर्म्स क्या होती है इसे हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन. बट most of energy is lost in this reflection, scattering and absorption. Now come to the next factor, which is length of the day. The length of the day, length of the जो डे होता है that increases poleward when the northward march of the sun. अब जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में पोजीशन बता रखी है समर सॉल्स्टाइस की. समर सॉल्स्टाइस which means we are talking about this position, 21st June. 21st June को क्या है, Tropic of Cancer with the northward, this is the northern hemisphere, right? With the northward march of the sun, then the Tropic of Cancer एक्ट एज अ वर्चुअल इक्वेटर. यानी कि मैक्सिमम इंसोलेशन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रिसीव हो रही है. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रिसीव हो रही है तो आपको यहाँ पे देखो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो आर्कटिक सर्कल है, दिस एंटायरली पूरा जो आर्कटिक सर्कल है दैट इज इन द इल्यूमिनेटेड जोन, विच मीन्स polar areas, the Arctic circle, this experience of polar day, which means 6-month day is experienced at this place. 6 महीने यहाँ पर दिन एक्सपीरियंस होता है. एंड एट द सेम टाइम
This Antarctic circle is entirely in the non-illuminated zone, which means the polar night, 6 month night experience at this place. So length of the day जो है वो वेरी करती है at all places except equator, क्योंकि इक्वेटर पे आपको more or less 12 hours of daylight हमेशा ही मिलेगा. अब यहाँ पे क्या होता है, क्यों मिलती है 12 hours of daylight? Because this is the circle of illumination which actually divides the earth into two equal halves. अब यहाँ पे ये आपको illuminated zone दिख रहा है तो यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट होगा, राइट. अब 6 month ऑफ जो पोलर डे है वो ये वाला, ये मैंने डायग्राम इसीलिए यहाँ पे लगाया है. दिस इज द वर्नल इक्विनॉक्स. मार्च 21 से लेकर के सितंबर 21 का जो ये वाला जो पूरा पीरियड है, इसके अंदर आपको नॉर्थ पोल पे 6 month डे रहता है और जो साउथ पोल है वहां पर 6 month नाइट रहती है. और ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर जब साउथ पोल पे डे होगा, क्योंकि जब जो सन है when it march towards the southern hemisphere at tropic of Capricorn, तो फिर ये वाला एरिया जो है southern पोल जो है which comes in the illuminated zone, और जो northern पोल है वो आपका चला जाता है नॉन illuminated पोल पे, तो उल्टा हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन. देखो अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी चेंज होता रहता है. क्यों होता रहता है चेंज? उसका कारण क्या है? बिकॉज एवरीवन नोज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल जो पाथ होता है उस पर अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, है ना. तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस है वो भी थोड़ी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जब अर्थ सन के नियर होती है, कभी अर्थ जो है वो सन से फार्दर दूरी पर होती है, यानी कि दूर होती है. तो जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ विच इज 93 मिलियन माइल्स, 93 मिलियन माइल्स, और यू कैन से 149 मिलियन किलोमीटर. अब दोनों आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है. एक माइल जो है उसके अंदर आपका 1.6 किलोमीटर होता है, टू बी प्रिसाइज 1.609 किलोमीटर होता है. अब इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 149 मिलियन किलोमीटर आ जाएगा. दिस इज द एवरेज डिस्टेंस. ये एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में. बट देयर आर सर्टेन पोजीशंस एज वी सेड कि जब अर्थ जो है वो सन के पास होती है, सबसे ज्यादा पास होती है, तो उसे पेरीहिलियन पोजीशन बोला जाता है. पेरीहिलियन, और ये कब होती है? 3 जनवरी को पेरीहिलियन, जब अर्थ सन के बहुत पास होती है. कितना पास? यानी कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस 91.5 मिलियन माइल्स होती है. और जो एक दूसरी पोजीशन होती है जिसे बोला जाता है अफीलियन. अफीलियन में क्या होता है? अर्थ इज फार्दरेस्ट टू द सन, और ये कितना दूर होती है? 94.5 मिलियन माइल्स इसकी डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में. अब देखो पेरीहिलियन तो होता है आपका 3 जनवरी को एक्सपीरियंस किया जाता है व्हेन द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन. अब अर्थ सन से नियर है विच मीन्स अर्थ विल रिसीव मोर इंसोलेशन, है ना. यहाँ पे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा. अब ज्यादा इंसोलेशन रिसीव होगा बट हमें तो नहीं होता. क्यों? क्योंकि जनवरी है भाई. जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चल रही हैं. जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चलती है ना. तो इस वजह से क्या होता है कि विंटर्स जो होंगी वो 7% लेस सीवियर होगी इन जनवरी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है. बट क्योंकि पेरीहिलियन पोजीशन है, अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, तो इस वजह से विंटर्स 7% लेस सीवियर होगी, बट समर 7% मोर इंटेंस होगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के बहुत पास है. अब दूसरी कंडीशन जो है एफिलियन में क्या होता है? एफिलियन कब आती है? 4 जुलाई को, when the sun is farthest to the when the earth is farthest to the sun. अब इस समय क्या होगा? जो अर्थ फारदेस्ट है सन से, तो उस टाइम पे समर इज 7% लेस इंटेंस इन जुलाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पर विंटर्स इज 7% मोर इंटेंस इन साउदर्न हेमिस्फीयर. देखो क्या चीज है कि भाई जुलाई जो है उस टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है, ठीक है. जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रही है.
अब समर चल रही है तो समर लेस इंटेंस होगी, क्योंकि एफिलियन जो जो अफिलियन पोजिशन है उसके अंदर सन दूर है अर्थ से, इसका मतलब सन पे सन की जो इंसोलेशन है वो अर्थ पे कंपैरेटिवली पेरिहेलियन पोजिशन के कम पहुंच रही है ना। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जुलाई में समर्स लेस इंटेंस होंगी, बट विंटर्स जो होंगी वो ज्यादा इंटेंस होंगी साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई मेक इट क्लियर। सनस्पॉट, नाउ आवर नेक्स्ट फैक्टर विच इज सनस्पॉट। अब सनस्पॉट क्या होते हैं? सनस्पॉट देखो, सबसे पहले तो हम सन की स्ट्रक्चर देखते हैं। सन जो है उसके ऊपर ये देखो, ये आउटर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारे इसकी जो फ्लेयर्स वगैरह है, ये जो सबसे आउटर का जो एरिया है ये कोरोना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है ये आउटर लेयर जो है, दिस इज द क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर के अंदर यहाँ पे आपको क्रोमोस्फेयर के भी अंदर वाली लेयर होती है फोटोस्फेयर, और ये जो फोटोस्फेयर दिखा रखा है इसी पे ये सनस्पॉट है। ये होते हैं सनस्पॉट जो यहाँ पे मैंने क्लियरली इसके अंदर दिखा रखे हैं, ठीक है। ये फोटोस्फेयर के होते हैं, दे आर द डार्क एरियाज विद इन फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर के अंदर ये डार्क एरियाज होते हैं जो कि क्रोमोस्फेयर, ये जो आउटर क्रोमोस्फेयर है इससे सराउंडेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो सन स्पॉट है ये डार्कर एरियाज होते हैं, बट दे आर कूलर, यानी कि ये ठंडे एरियाज होते हैं। ठंडे मतलब वैसे ठंडे नहीं, इनका जो टेम्परेचर है वो जो क्रोमोस्फेयर है उसके कंपैरिजन में, दिस इज द क्रोमोस्फेयर, इनके कंपैरिजन में ये लेस होता है। यानी कि क्रोमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है उससे 1500 डिग्री सेल्सियस ये ठंडे होंगे, ठीक है, सराउंडिंग ट्रोपोस्फीयर से। और जो एक स्मॉल, अगर आप सनस्पॉट की अगर आप बात करें कि स्मॉल सनस्पॉट का जो साइज है, एवरेज साइज, वो आपका 1600 किलोमीटर होता है। इनका लाइफ स्पैन भी कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक का ही होता है। अगर हम एक पर्टिकुलर सनस्पॉट को अगर हम ढंग से देखें तो उसके अंदर क्या होता है, एक ये डार्क कलर होता है, एक ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का सेंटर होता है जिसको अम्ब्रा बोला जाता है, और उसके सराउंडिंग एक लाइटर रीजन होता है जिसे पेनम्ब्रा बोला जाता है, राइट। और ये सनस्पॉट हमेशा एक जितने ही नहीं रहते हैं, दे एक्चुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये सनस्पॉट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, और सनस्पॉट के इंक्रीज डिक्रीज का जो एक साइकिल होता है 11 ईयर्स का साइकिल, राइट। तो ये कंप्लीट करते हैं एक 11 ईयर्स का साइकिल जिसमें इनका नंबर कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, इस तरीके से। अब ये सनस्पॉट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सनस्पॉट कैसे अफेक्ट करते हैं इंसोलेशन को? तो देखो क्या होता है, सनस्पॉट एक्टिविटीज जो है दे आर रिलेटेड टू जो रेडिएशन है, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है उससे रिलेटेड होती है। ऐसा माना जाता है कि जो ये जो एनर्जी रेडिएट होती है सन से, वो जब नंबर ऑफ सनस्पॉट ज्यादा होते हैं, अब ये जो सनस्पॉट है जब ये ज्यादा होंगे तो रेडिएशन जो है, तो एनर्जी जो रेडिएट होती है वो भी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जब एनर्जी रेडिएट ज्यादा होगी तो जो अर्थ पे रिसीव होने वाली इंसोलेशन है वो भी ज्यादा होगी, इंसोलेशन भी ज्यादा होगी, राइट। So the energy radiated from the sun increases and the number of sunspot increases and the amount of insolation also increases. So that is how sunspot affect the distribution of insolation. Now come to the last factor which is effect of atmosphere. Atmosphere के effect की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि जब सन की एनर्जी जो है, when the solar radiation is coming from coming to the earth surface, तो अब सन से लेकर के अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 149 मिलियन किलोमीटर, राइट। अब इस पूरे डिस्टेंस को पार करने में सन का एटमॉस्फेयर और अर्थ का एटमॉस्फेयर, इसको भी तो इस रेडिएशन को पास करना पड़ेगा। सन की जो रेडिएशन है, जो सोलर रेडिएशन है, जब वो अर्थ पे जाएंगी तो वो सन के एटमॉस्फेयर को ही पास करेंगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर को ही पास करेंगी, उसके बाद में वो अर्थ सरफेस पे पहुंचेंगी, राइट। तो इस प्रोसेस में, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के प्रोसेस में रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्कैटरिंग में काफी सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। इसलिए सन की जो
टोटल मतलब अगर हम रेडिएशन देखें तो उसका सिर्फ 1/2 बिलियन पार्ट जो है एनर्जी का वो ही अर्थ तक पहुंच पाता है। बहुत छोटा सा पार्ट ही सोलर रेडिएशन का अर्थ की सरफेस तक पहुंच पाता है। एंड सरप्राइजिंगली इनफ दिस स्मॉलेस्ट पार्ट 1/2 बिलियन पार्ट जो है एनर्जी का, दिस इज सफिशिएंट इनफ टू रन द जियो बायोकेमिकल साइकिल ऑन अर्थ सरफेस। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, क्योंकि हमने यहाँ पे काफी सारे नाम देखे, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन, अब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग। क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन इज दिस, देखो जैसे ही कोई एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन, जैसे ही कोई एनर्जी किसी सरफेस के ऊपर, जो बॉडी ऑफ सरफेस है उसके ऊपर गिरती है, तो वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब वापस चली जाती है। अल्बीडो या रिफ्लेक्टिविटी भी बोला जाता है। अब जैसे कि इसे अल्बीडो या रिफ्लेक्टिविटी भी बोला जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं अर्थ है, राइट, अर्थ की हमें पता है 30% एल्बिडो है। एल्बिडो यानी कि अगर सनलाइट, अगर सोलर एनर्जी 100% है तो उसमें से 30% तो ऑल्बिडो है और 70% जो है, यानी कि अर्थ जो सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ पे आ रही है वो 70% ही अर्थ जो ग्राउंड सरफेस उसके अंदर एब्जॉर्ब की जा रही है, 30% तो वापस भेज दी जा रही है, यानी कि 30% रिफ्लेक्ट की जा रही है, रिफ्लेक्टेड विदाउट एब्जॉर्प्शन, राइट। एल्बिडो ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द एंगल ऑफ सन विद द अर्थ सरफेस। अब ये एल्बिडो भी जो है वो वेरी करती है सरफेस टू सरफेस। जैसे कि स्मूथ सरफेस है तो उसकी एल्बिडो जो है वो ज्यादा होती है। ब्राइट सरफेस है जैसे कि उसकी एल्बिडो भी ज्यादा होती है। जैसे ब्राइट सरफेस में हम देखते हैं ना, जो पोलर एरियाज हैं, पोलर एरियाज में क्या होता है, पोलर एरियाज के अंदर आइस कवर्ड है, तो यानी कि व्हाइट ब्राइट सरफेस है, तो उस वजह से पोलर एरियाज की जो एल्बिडो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से वहां पर जो लेंथ ऑफ द डे ज्यादा होने के कारण भी, जैसे कि हमने देखा था ना, पोल्स पे 6 मंथ डे रहता है, तो अगर वहां पे लेंथ ऑफ द डे ज्यादा है, 6 मंथ तक रात नहीं हुई है, दिन है, बट फिर भी वहां पर आपको मिनिमम इंसुलेशन होती है। क्यों होती है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एल्बिडो जो है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। एंड प्लस सोलर रेडिएशन जो है दे एक्चुअली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस, वो उसके ऊपर वर्टिकल नहीं आती है, पैरेलल होती है, राइट। तो हम यहाँ पे थे, खैर सरफेस टू सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस की एल्बिडो ज्यादा होती है, ब्राइट सरफेस की एल्बिडो ज्यादा होती है। मॉर्निंग इवनिंग की अगर बात करें तो अर्ली मॉर्निंग्स हो गई और आपका जो लेट इवनिंग्स हो गई, उस टाइम पे एल्बिडो हाई होती है, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो स्लैंट करती हैं और स्लैंटिंग रेज जो होती हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस वजह से अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग की जो एल्बिडो है वो ज्यादा होती है। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सीजन टू सीजन। सीजन टू सीजन कैसे? अब जैसे दिसंबर से फरवरी का अगर हम देख लेते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो स्नो कवर्ड होता है दिसंबर से आपका फरवरी के बीच में, तो इसका मतलब इस टाइम पे एल्बिडो ज्यादा होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंपेयर टू द अदर सीजन। डिफ्यूजन, अब देखो डिफ्यूजन जो है, when diameter of the dust particle or water vapor molecule is larger than the wavelength of incoming solar radiation is called diffuse reflection, right? when the wavelength से ज्यादा बड़ा अगर डस्ट पार्टिकल या वाटर वेपर है तो ये आपकी जो एनर्जी है ये ऑल डायरेक्शन के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। Diffused and scattered solar energy present in the lower atmosphere enables us to see the darkness of the night. Even in the darkness of the night, रात में हम अंधेरा होता है बट फिर भी हम देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो लोअर एटमॉस्फेयर है ये डिफ्यूजन की वजह से ही, डिफ्यूजन स्कैटरिंग जो है सोलर एनर्जी की जो लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसी वजह से हम जो पिच बिल्कुल डार्क नाइट है उसके अंदर भी हम देख पाते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉन सेलेक्टिव इन नेचर, तो इस वजह से डिफ्यूज लाइट जो है दैट रिमेन्स व्हाइट। नाउ कम टू एब्जॉर्प्शन। वैसे ये बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर हम देख रहे थे तो हमें पता होना चाहिए कि चीजें क्या होती है, तो इस वजह से ही मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ जस्ट इन फ्यू लाइंस ओनली, कि आपको पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन होता क्या है। अब जैसे लाइट वेव्स हैं, अब इसमें से कुछ तो जो सोलर एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और कुछ क्या है इस ग्राउंड सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई, तो कुछ हीट एनर्जी, और ये जब एब्जॉर्ब कर ली जाती है फिर उसके बाद में हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन।
रिटेनिंग अ पोर्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, यानी कि जो ये जो वेव्स हैं, जो सोलर एनर्जी है, व्हेन इट रीच अपॉन द अर्थ सरफेस, उसमें कुछ पोर्शन जो है वो ग्राउंड सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको फिर हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज सेलेक्टिव इन नेचर. वाटर वेपर इज अ पोटेंट एब्जॉर्बर ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ ईएमआर. देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसकी जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उसको क्या कहती है, जो वाटर वेपर है वो पोटेंट एब्जॉर्बर है इंफ्रारेड रेडिएशंस का. यानी कि वाटर वेपर जो है, इसी वजह से वाटर वेपर को हम प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है. ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी को जो ये रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. बट ये उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है. वाई? बिकॉज इसका एटमोस्फेयर के अंदर स्टे टाइम वाटर वेपर का कम होता है कंपेयर टू द अदर ग्रीन हाउस गैसेस. सो इट्स वाई so that's why it is not harmful, but it is a primary greenhouse gas, right? Water vapor, तो ये absorb कर लेती है radiations को. Oxygen, nitrogen, ozone, water vapor, they act as an atmospheric window for the spectrum of visible light of incoming radiations. अब क्या होता है कि जो जो विजिबल लाइट होती है, दे आर नॉट विजिबल लाइट जो होती है विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय दीज गैसेस, वो इन गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जाती, राइट? तो इस वजह से दे एस्केप एंड रीच टू द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाती है इन गैसेस के द्वारा. तो इसी वजह से बोला जाता है कि इन्हें ये एक एटमोस्फेरिक विंडो के रूप में काम करती है कि ये जो मतलब विजिबल लाइट है उसको आने देती है अर्थ सरफेस पर. Now come to the last one, which is scattering. Scattering is what? Scattering is diffusion of a portion of incoming solar radiation in different direction by particulate matter, gas molecules in the atmosphere is called scattering. अब ये जैसे white light है, when it is fall upon this atmospheric particle, so it is scattered in different direction. अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हो जाता है, इसको स्कैटरिंग कहा जाता है. शॉर्टर वेवलेंथ्स जो है दे स्कैटर मोर रेडिली देन द लॉन्गर वेव, जो वेवलेंथ्स होती है उनके कंपैरिजन में. स्कैटरिंग भी 3 टाइप की होती है, रेलिक स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग. वैसे ये स्कैटरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये आपके सेपरेट टॉपिक्स हैं रिमोट सेंसिंग के अंदर. तो रिमोट सेंसिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्कैटरिंग के बारे में और ये जो टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग है इनके बारे में इन डिटेल बात करेंगे. अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ रेलिक स्कैटरिंग क्या होती है. रेलिक स्कैटरिंग आपकी अपर एटमॉस्फेयर के अंदर होती है. अपर एटमॉस्फेयर में होती है तो अपर एटमॉस्फेयर में होगी तो विच मीन्स की पार्टिकल का साइज क्या होगा, पार्टिकल जो होगा उसका साइज कम होगा, है ना. जो मतलब कि आपकी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उससे काफी कम होता है पार्टिकल का साइज रेलिक स्कैटरिंग के अंदर. और रेलिक स्कैटरिंग से ही जुड़े हुए जो फिनोमेना है विच इज जैसे कि स्काई का ब्लू कलर है, तो वो किसकी वजह से हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, रेलिक स्कैटरिंग की वजह से. सनसेट हो गया या सनराइज हो गया, ये भी हमें रेलिक स्कैटरिंग की वजह से दिखाई मतलब सनसेट सनराइज का जो कलर वगैरह है स्काई का वो हमें रेलिक स्कैटरिंग की वजह से ही वैसा दिखाई देता है. माई स्कैटरिंग में क्या होता है, ये आपकी लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर होती है. माई स्कैटरिंग और नॉन सेलेक्टिव ये दोनों ही लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं. और इनके अंदर माई जो स्कैटरिंग है उसमें तो पार्टिकल का साइज जो है वो इक्वल ही रहता है जो आपकी वेवलेंथ है उससे, जो आपकी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उससे इक्वल ही होता है साइज. इनफैक्ट जो माई स्कैटरिंग है वो किस वजह से होती है, जैसे पॉलन्स हो गए, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक वगैरह हो गई, तो उस वजह से माई स्कैटरिंग होती है. और जो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है इसके अंदर पार्टिकल का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है कंपेयर टू द वेवलेंथ, वो लार्जर देन वेवलेंथ होता है. इस वजह से जो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है, इनफैक्ट अगर हम देखें फॉग एंड क्लाउड्स का जो कलर होता है व्हाइट कलर, वो किस वजह से है, वो आपका जो फॉग और क्लाउड्स का जो व्हाइट कलर है वो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से होता है. और ये किस कारण होती है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, आइस क्रिस्टल्स हो गए या कोई वॉल्केनिक ऐश वगैरह हो गई, उससे अगर मतलब जो आपकी रेडिएशंस हैं वो टकराती हैं तो तब आपकी नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग. तो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटरिंग. खैर ये टॉपिक्स इन डिटेल रिमोट सेंसिंग में पढ़े जाएंगे. यहाँ पे जस्ट एक नाम आया था सो आई थॉट कि आपको बता दूं थोड़ा सा उसके बारे में. So this is all about let me give you a reference. ये टॉपिक मैंने क्लाइमेटोलॉजी
की बुक आती है प्रोफेसर सविंदर सिंह की, वहां से कवर किया है। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, बट आपको जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी आपको इस बुक में मिल जाएंगी। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का मैं जल्द ही शेयर करूंगी इसमें, या फिर बाद में जो वीडियो का जो मतलब वीडियो के बाद में जो सेक्शन होता है उसके अंदर वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में देख लीजिएगा। मैं बाद में टेलीग्राम का लिंक इसमें शेयर करूंगी जहाँ पे मैं ये जो पावर पॉइंट वगैरह है प्रेजेंटेशन, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। So this is all about the video. I hope you have liked this lecture. You have learned a lot of things from this lecture. And if you like it, then please don't forget to subscribe it and hit a like. Do share it with your friends. And if you want me to make such videos for NET JRF exam, for your NET JRF exam preparation, then please do like it and do let me know in the comment section. This will motivate me to make more videos. Thank you. Have a nice day.